welcome to my YouTube channel. My name is Virendra Singh Rathod. Today we are going to discuss about topological sort problem. And before moving to the problem, please subscribe to my YouTube channel. I was seeing that many of the people just watching the video but not subscribing. Please subscribe to my YouTube channel. I'll be making better and more content and very depth content in the DSA. Okay, so today's problem is topological sort in a graph. So what is topological sort? Okay, let's understand using this example. So here you can see there is a graph 2, then from 2 you can move to 1, you can move to 3, you can move to 0 also from 1, and then 3 to 0. Okay, so in topological sort what we have to do, first we have to find in degrees. Okay, in degree we have to find in degree of each node. Okay, so what do you mean by in degree? In degree means how many incoming edges on that, how many incoming edges to that node. So for example, in this node there is no incoming edge, only their outgoing. So how many incoming edge? For this, 0 incoming edge. Okay, for this if you see incoming edge, there is a 1 incoming edge, 2 outgoing edge, but we have to concern about only incoming edges. So here incoming edge is 1. In this case only 1 incoming edge from 1, but this is outgoing edge, so only 1. So this is also 1. Here 1 incoming edge from 3, 1 incoming edge from 1. So 1 plus 1, 2. So this is the incoming edges. This is the in degree for the graph. So now second thing what we have to do to calculate the topological sort is we have to take one Q. So in the Q, first in Q always we put the the node which has value 0, which has in degree value 0. So now in this first we have to put whatever the value. So this is 0, so we are going to put this as a 0. So this is basically 2 node. So we put the second node which has in degree 0. Okay, so we put all currently in the graph all the nodes which has in degree 0. So 2 we have already put it. Now we process the Q. We take out 2 from here. Okay, and let's say in output result we will put 2 first we taken out, and take out means we are going to process this one, means this will be removed. Once this is removed, from here where we can go? We can go to the first. So first was having 1 and that was from 1, from 2 only. So now this in degree will reduce to 0, like reduced by 1. तो हमेशा 1 से इसको रिड्यूस करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया 0, तो ये हो गया 0. अब इसे और कोई भी नहीं है तो 0 हो गया. अब इस 0 जब जैसे वो 0 होती है वी पुट इनटू द क्यू. नाउ और कोई 0 नहीं है, यही 0 है. ओके, सो नाउ वी प्रोसेस 1. सो आई विल पुट हियर इन आउटपुट एज अ 1, प्रोसेस 1 प्रोसेस का मतलब है कि ये यहाँ से हट रही है, यहाँ से रिमूव हो रही है. ये जैसे रिमूव होती है इससे जितनी भी कनेक्टेड है वो एक कम हो जाएगी. तो इससे कनेक्टेड है 3, तो 3 रिड्यूस टू 0. इससे कनेक्टेड है 0, तो 0 रिड्यूस टू 2 टू 1. ओके, ये हो गई प्रोसेस. अब नेक्स्ट कौन सी है 0 में? ये है, तो इसको प्रोसेस करना है. तो ये इसको प्रोसेस करेंगे तो ये 3 पहले क्यू में जाएगा, ठीक है. अब इस 3 को यहाँ से क्यू से हटाएंगे तो आंसर में मेरा 3 आ जाएगा. और ये पूरा प्रोसेस हो गया. तो इससे जो भी कनेक्ट, इससे अभी एक ही कनेक्टेड है विच की इसकी 1 है, तो इसकी ये इन डिग्री हो जाएगी 0. जैसे 0 होगी 0 को डाल देंगे, इसको प्रोसेस कर देंगे और मेरा आंसर में आ जाएगा 0. और ये भी प्रोसेस, पूरा ग्राफ प्रोसेस हो गया. द आउटपुट इज 2130. टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर आउटपुट में डिफर, बट इन एवरी प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है. अगर डिफरेंट भी आता है 2130 डिफरेंट भी कर सकता हूँ. इस केस में तो क्या है कि सब 0 हुआ, बट यू कैन सी. तो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड. सी, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक इन डिग्री का एरे डिफाइन करेंगे जिसके हमारे हम सारी जो भी अपनी वर्टिसेस है, जो भी अपनी नोड्स है, उनकी इन डिग्रीज़ को इसके अंदर अपन फिल करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा अपना आगे का लॉजिक लिखेंगे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो एडजेसेंसी मेरा ग्राफ बना हुआ था, इससे मैंने इनकी जितनी भी मेरी नोड्स थी उनकी इन डिग्रीज़ को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिया है. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने गेट ऑफ आई मतलब अगर इस एग्जांपल में देखते हैं तो ये सोर्स है, ये हो गई हमारी सोर्स से जिसके ऊपर, तो आई से जितनी भी कनेक्टेड है, तो आई में सबसे पहले है मेरा जे,
तो जे आया तो जे की मैंने इन डिग्री को इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि वो इससे एक जो नोड है वो जे की तरफ जा ही रही है, एक जो है आई से जे की तरफ जा ही रही है, तो उसकी रेख बढ़नी ही बढ़नी है। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो मैंने ये जो जीरो है इसकी को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इन डिग्रीज इंक्रीमेंट हो गई है डेस्टिनेशन वाली की, ठीक है, जिनकी इनकमिंग एजेस हैं। उसके बाद में मैंने एक क्यू ले लिया यहाँ पे, ये मैंने क्यू डिफाइन कर लिया। क्यू डिफाइन करने के बाद में मैं अब स्टार्टिंग में मैंने सारी इन डिग्री कैलकुलेट करी, कुछ की इन डिग्री जीरो होंगी जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है इसको ट्रेवर्स करना। तो जो जिन की मतलब इन डिग्री जो है वो ज़ीरो है उनको मैंने क्यू के अंदर ऐड कर लिया, जितनी भी ज़ीरोज़ हैं इनिशियली में, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ओके उसके बाद में मैंने वहाँ से क्या किया, मैं तब तक चलाऊंगा जब तक कि मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती कंप्लीटली, ठीक है। मैंने पहली वाली को निकाला, वो जो इंटीग्री डाली इसमें मैं पहली वाली नोड की वैल्यू को निकाला। निकालने के बाद मैंने उसको अपने रिजल्ट में डाल दिया, और रिजल्ट में डाल के मैंने उससे जितनी भी मतलब जो मैंने नोड निकाली थी उस नोड से जितनी भी बाकी की जो नोड्स पे जा रहा हूँ मैं उनकी क्योंकि ये अभी आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, तो उनकी मुझे इन डिग्री को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो आई एम डिक्रीजिंग, उससे जितनी पे भी वो जा रहा है उनकी इन डिग्रीज को पहले डिक्रीज किया। अगर डिक्रीज करने के बाद अगर उनमें जिसकी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ अगर वो जीरो हो गई, उसकी इन डिग्री जीरो हो गई, तो उसको मुझे क्यू में ऐड कर देना है, और ये लॉजिक मुझे रिपीट करते जाना है तब तक कि मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। एट द एंड में मेरे को रिजल्ट रिटर्न कर देना है। इसमें इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।